Good morning, students. Today we will start second chapter of history, that is writing and city life. In this chapter we will study about the early city, that is Mesopotamia, and we will also study about how the city life began in Mesopotamia and what was its language, their writing system and literature. So let's start. City life began in Mesopotamia, that is located between two rivers, Euphrates and the Tigris river, and the Mesopotamia region is now a part of Republic of Iraq. Mesopotamian civilization is known for its prosperity. As we have studied in our earlier classes about Harappa and Mohenjo-daro, were the city of Indus Valley civilization, and now we are going to study about Mesopotamian civilization, which was the part of Republic of Iraq. Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich literature, and its mathematics and astronomy. Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BC. First look in the map. Where is the Mesopotamia? Between two rivers, Euphrates and Tigris river, and its literature spread in Syria and Turkey. You can see in the map the Syria in the north and Turkey after 2000 BC, so that the kingdom of that entire region were writing to another and to the Pharaoh of Egypt in the language and script of Mesopotamia. Look, जो ये मेसोपोटामिया की जो ये लैंग्वेज थी, जो इनका जो राइटिंग सिस्टम था, ये स्प्रेड हुआ, इनका लिटरेचर स्प्रेड हुआ सीरिया एंड टर्की के एरिया में, और साथ ही साथ इजिप्ट के जो फ़राओ एरिया है वहाँ पर. और इसका रीजन क्या था? सो दैट ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से जो अपने स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें. Here we shall explore the connection between city life and writing, and then look at some outcome of sustained tradition of writing. तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखेंगे कि सिटी लाइफ और राइटिंग के बीच में क्या कनेक्शन था. ठीक है, ये राइटिंग और सिटी लाइफ जो आपके चैप्टर का नाम है, तो इनके बीच में क्या कनेक्शन है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. एंड हम ये भी देखेंगे कि इसका इस राइटिंग ट्रेडिशन का क्या आउटकम था. ठीक है. इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कड़. ठीक है. तो ये जो अर्बनाइज्ड ये जो लैंड था मेसोपोटामिया का, इसका साउथ का जो पार्ट था वो एक्चुअली अर्बनाइज्ड एरिया था, जिसको कि सुमेर या फिर अक्कड़ रीजन कहा जाता था. आफ्टर 2000 BC, व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी, द टर्म बेबीलोनिया वॉज यूज्ड फॉर द सदर्न रीजन. ये जो अर्बनाइज्ड एरिया था सुमेर, और जो कि बाद में अक्कड़ रीजन भी कहलाया, धीरे धीरे और डेवलप होता गया, और उसके बाद में ये बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा. फ्रॉम अबाउट 11,000 BC, when the Assyrians established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. The first known language of the land was Sumerian. It was gradually replaced by Akkadian around 2400 BC till about Alexander's time, with some regional changes occurring.
तो हमने देखा कि मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट है वो अर्बनाइज था, जो कि पहले सुमेर और बाद में अक्कड़ रीजन कहलाया, और बाद में यही वाला एरिया जो है वो डेवलप होकर बेबीलोनिया कहलाया। और मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ का पार्ट है, ये यहाँ पर जब असीरियंस ने अपना राज्य स्टैब्लिश किया तो वो एरिया असीरिया कहलाया। और इस लैंड का जो लैंग्वेज था वो पहले सुमेरियन लैंग्वेज था, जो कि बाद में धीरे धीरे ये रिप्लेस हुआ अक्कड़ लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, बाद में वहाँ अक्कड़ियन लैंग्वेज जो था वो बोला जाने लगा, और ये अक्कड़ियन लैंग्वेज जो है वो अलेक्जेंडर के टाइम तक था, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। फ्रॉम 1400 BC, Aramaic also trickled in. This language, similar to Hebrew, became widely spoken after 1000 BC. It is still spoken in part of Iraq. जो है वो स्टार्ट हुआ, और जो कि बहुत कुछ सिमिलर था हिब्रू लैंग्वेज से। और ये जो हिब्रू लैंग्वेज है वो आज भी इराक के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है। As we know, we can find out about history by the archaeological survey. हिस्ट्री के बारे में, जैसे मेसोपोटामिया के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं या हम जो कुछ भी जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो सारी चीज़ें उन एविडेंसेस के थ्रू जो हमें एक्सकेवेशन के में मिला है, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं उनसे जो चीज़ें हमें मिली हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840। ठीक है, ये जो हम अर्ली सिटी मेसोपोटामिया के बारे में जो कुछ भी हम ये पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, वो सब हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू पता चला, जो कि मेसोपोटामिया में 1840s में स्टार्ट हुआ। एट 1 or 2 cities including Uruk and Mari, you can see in your map. Excavation continues for decades, and through archaeological survey we not only study hundreds of Mesopotamian buildings, statues, ornaments, graves, tools and seals as source, there are thousands of written document also. ठीक है, बहुत सारी इन सारी मेसोपोटामिया की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ और जो एक्सकेवेशंस हुए, उनमें हमें बहुत सारी जो बिल्डिंग्स और ऑर्नामेंट्स और जो चीज़ें जो मिली, जो एविडेंस मिला, उसके साथ साथ हमें बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन प्रूफ भी मिला। मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियंस बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट्स ओल्ड टेस्टामेंट। और यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया बहुत इम्पॉर्टेंट ये था, क्योंकि इसमें यहाँ पर उनके जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट्स में जो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उसमें इस एरिया की चीज़ें भी इंक्लूडेड थी। इसलिए यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस एरिया के एक्सकेवेशन। The first part of the Bible in Old Testament refers to Shemer, meaning Sumer. ठीक है, ये माना जाता है कि बाइबल का जो बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट जो था, उसमें जो शिमर वर्ड आया है वो शिमर एक्चुअली सुमेर जो लैंग्वेज थी उसके लिए है। एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़, ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स और ऑफ यूरोप looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land, and when archaeological work began in area, there were an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. और इसलिए जो ट्रैवलर्स और यूरोप के जो स्कॉलर्स थे वो मेसोपोटामिया को अपने एक एंसेस्ट्रल लैंड के रूप में देखते थे। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो ये उनकी कोशिश थी कि वो प्रूव करें कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सही हैं। बाइबल में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि और
वो उसको कैसे प्रूव कर सकते थे? वहाँ पर जो एक्सकेवेशन वर्क चल रहा था, जो आर्कियोलॉजिकल वर्क चल रहा था, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही थी, उससे वो सारी चीज़ें करीब करीब टैली हो रही थी. From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient part of the Mesopotamia. In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of flood mentioned in the Bible. ठीक है, बाइबल में एक स्टोरी मेंशनड है कि फ्लड के आ जाने की वजह से पूरा का पूरा जो नगर था वो तहस नहस हो गया. तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि क्या इस रीजन में कुछ ऐसा हुआ था, तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने ब्रिटिश म्यूज़ियम के एक को मतलब फंड प्रोवाइड कराया जिससे कि वो एक्सपीडिशन हो सके और वो टैबलेट जैसी चीज़ें मिल सके, वो जिसमें कि सारी चीज़ें लिखी हुई या स्टोरी लिखी हुई हो, उस तरह की चीज़ें कुछ हमें मिल जाए. इसलिए इन लोगों ने उसको खोजने का काम स्टार्ट किया. बाय द 1960 it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true but may have been ways of expressing memories about important changes in the history. ठीक है, और 1960 के मतलब जब बहुत सारी चीज़ें मिली तो बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें भी मिली, तो एक शुरू में तो ये था कि शायद मैच हो जाए वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर ये माना गया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखी हुई हैं वो बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा उसको मेमोराइज करने के लिए जो रिटन प्रूफ है वो मिलने लगा. ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स became far more sophisticated and refined. What is more attention was directed to different questions including reconstructing the lives of ordinary people, establishing the literal truth of the biblical narratives receded into the background. टेक्निक्स जो थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा रिफाइंड होने लगी, सोफिस्टिकेटेड होने लगी, और सबसे बड़ी बात जो अटेंशन जो था वो मेन हो गया उन क्वेश्चन पे, डिफरेंट क्वेश्चंस पे. और कौन से क्वेश्चन? वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसी थी, एक तो इस पर फोकस हो गया इनका, और साथ ही साथ एक तो लिटरल ट्रुथ स्टैब्लिश करने का कि जो भी नैरेटिव्स लिखा हुआ है बाइबल में उसका जो लिटरल ट्रुथ को स्टैब्लिश किया जाना, ठीक है, उसकी कोशिश भी की जाने लगी. और मच ऑफ व्हाट वी डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन द चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन दीज लेटेस्ट स्टडीज़. राइट नाउ मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी. अब हम मेसोपोटामिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है, Iraq is a land of diverse environments. In the northeast lie green plains, gradually rising to trees-covered mountains ranges with clear streams and wild flowers, with enough rainfall to grow crops here. Here agriculture began between 7000 and 6000 BCE. मेसोपोटामिया का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट वहाँ ट्री कवर्ड एरिया था. ठीक है, प्लेन्स था, ट्री कवर्ड एरिया, और वहाँ पर जो पानी की जो मतलब क्लियर स्ट्रीम्स थे, फ्लावर्स थे, रेन भी अच्छी हो जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फसलों को उगाने का काम भी, एग्रीकल्चर जो था वो वहाँ पर किया जाता था. और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ 7000 और 6000 BC. इन द नॉर्थ देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड अ स्टेपी. ठीक है, नॉर्थ में एक अपलैंड था जो कि एक आप कह लो प्लेन का एरिया था जिसको स्टेपी कहा जाता है. वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर पीपल अ बेटर लिवलीहुड देन एग्रीकल्चर. और ये जो एरिया था स्टेपी का, जहाँ पर कि घास के मैदान थे, वहाँ पर लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एनिमल हर्डिंग था. ठीक है, और एग्रीकल्चर की बजाय वहाँ पर लोग एनिमल हर्डिंग उनके लिए बेटर ऑप्शन था लिवलीहुड के लिए. आफ्टर द विंटर रेन्स शिप्स एंड गोट्स feed on the grass and
low shrubs that grow here. To the east, tributaries of the Tigris provide route of communication into the mountains of Iran. और जो टिग्रिस रिवर का जो ईस्ट का पार्ट जो है, इसमें जो टिग्रिस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके थ्रू ईरान के पार्ट में, ईरान की तरफ जो था वो कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि इस पार्ट में देखो आप ईरान है, ठीक है। तो टिग्रिस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के थ्रू, ट्रिब्यूटरीज मीन्स भाई वो बाई वाटर रूट ही जाते होंगे ईरान, तो ईरान के माउंटेन्स की तरफ उनका कम्युनिकेशन था. द साउथ इज़ अ डेजर्ट एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग एमर्ज. ठीक है, और आप इधर साउथ का पार्ट देखो, डेजर्ट ऑफ अरेबिया. ठीक है, तो यहाँ ये जो साउथ का पार्ट था वो डेजर्ट था, और यहीं पर फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग जो है वो एमर्ज हुई. दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज द रिवर यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस. और इस एरिया में जो सिटी जो डेवलप हुई किसकी वजह से, वो यूफ्रेटिस रिवर और टिग्रिस रिवर की वजह से, विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट when they flood or when their water is let out onto the fields, fertile silt is deposited. तो इस एरिया में जब भी कभी हम क्या देख रहे हैं कि साउथ के एरिया में जो सिटीज़ डेवलप हुई उसके पीछे यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर्स थी, और ये जो रिवर है ये नॉर्दर्न माउंटेन से निकलती हैं. और कई बार इस एरिया में हमने देखा कि बारिश भी अच्छी होती थी, तो इन रिवर्स में कई बार इतना ज़्यादा पानी हो जाता था कि ये फ्लडेड हो जाती थी, और फ्लड होने की वजह से ये अपने साथ बहुत सारा सल्ट कैरी करती थी और नीचे के एरिया में वहाँ पर सल्ट डिपॉजिट करती थी, जो, और आपको पता है कि सल्ट जो है वो बहुत ही फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए. आफ्टर द यूफ्रेटिस हैज़ एंटर्ड द डेजर्ट, इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स. ये जो यूफ्रेटिस रिवर है जब वो डेज़र्ट में की तरफ आती है, जब डेज़र्ट में प्रवेश करती है, तो इसका जो पानी है वो कई सारे चैनल्स के रूप में डेज़र्ट में घुसता है. और ये चैनल जो है जब कभी इन रिवर चैनल्स में जब फ्लड की सिचुएशन होती है तो ये फिर एक तरह से इरिगेशन कैनाल के रूप में उस एरिया में फंक्शन करता है. Water could be let into the field of wheat, barley, peas and lentils which necessary. ठीक है, और उसके थ्रू, क्योंकि ये जो चैनल्स थे वो इरिगेशन के लिए प्रयोग किए जाते थे, और इसलिए बहुत तरह के जो की फसलें जो हैं वो जो ज़रूरी होती थी उनको उगाया जा सकता था. Of all ancient system that of the Roman empires included, it was the agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive. उस वक्त की जितने भी जो एंशंट सिस्टम था जिसमें कि रोमन एम्पायर भी इंक्लूडेड था, तो मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट का जो प्रोडक्टिव स्टेटस था एग्रीकल्चर का वो सबसे ज़्यादा अच्छा था, जबकि द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. इस एरिया में क्योंकि वो डेज़र्ट का एरिया है और वहाँ पर रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो एरिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चर पर्पस से के लिए. क्योंकि ये जो यूफ्रेटिस रिवर जो चैनल के रूप में एंटर करती थी डेज़र्ट एरिया में, और उन चैनल्स में जब भी फ्लड आता था तो जिसकी वजह से वो इरिगेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता था. Not only agriculture, Mesopotamian sheep and goats that grazed on the steppe, the northeastern plains and the mountain slope produced meat, milk and wool in abundance. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में जो स्टेपी का जो मैदान था वहाँ पर क्योंकि ये एनिमल हर्डिंग ही ज़्यादा होता था, तो मीट, मिल्क और वुल जो था वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता था. फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट इन समर. ठीक है, फिर नदियों से मछली भी मिलने लगी और डेट और पाम के जो फ्रूट्स हैं वो भी इस रीजन में मिलने लगे.
और इस तरह से मेसोपोटामिया की सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होने लगी। लेकिन मेसोपोटामिया की सिटीज़ जो थी केवल रूरल प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही डेवलप नहीं हुई, बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे जिनको कि हम टाइम टू टाइम देखेंगे कि कौन सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये सिटी लाइफ जो थी वो और भी ज़्यादा डेवलप हुई। लेकिन उसके पहले हम सिटी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। Cities and towns are not just place with large population। ठीक है, वहाँ जो cities और जो towns थे उनका मतलब वो नहीं था कि large population है इसलिए वो cities and towns हैं। It is when an economy develops in spheres other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns। जब एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनने लगी और इकोनॉमी जब डेवलप होने लगी तो अब ये ज़रूरी हो गया कि लोग जो थे वो एक साथ एक ग्रुप में टाउन में रहने लगे। अर्बन इकोनॉमीज़ कंप्राइजेज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विस। तो ये जो इकोनॉमी थी वो उसमें ये सारी चीज़ें, फूड प्रोडक्शन तो था ही, साथ ही साथ ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स और सर्विसेज भी इंक्लूडेड थी। केवल फूड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही वो जो मेसोपोटामिया जो था वो नहीं चल रहा था। सिटी पीपल दस सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल। उनको एक दूसरे पर अपनी ज़रूरतों के लिए, सर्विसेज के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता था। देयर इज़ कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग देम, और इसकी वजह से उनको इंटरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती थी। फॉर इंस्टेंस, द कार्वर ऑफ अ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैनॉट मेक एंड कलर्ड स्टोन्स फॉर द सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट। हिज स्पेशलाइजेशन इज़ फाइन कार्विंग नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि जो एक स्टोन कार्वर जो था उसको स्टोन कार्व करने के लिए जो ब्रॉन्ज के टूल्स चाहिए होते थे, तो वो ब्रॉन्ज के टूल्स जो है वो खुद नहीं बना सकता, और न ही उसको मालूम होता था कि ये जो कार्विंग का काम कर रहा है वो जो स्टोन्स हैं वो उसको कहाँ मिलेंगे। उसका जो स्पेशलाइजेशन था वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन कार्विंग था, ट्रेडिंग नहीं था। तो इसके लिए कि वो कहाँ से उसको स्टोन्स मिलेंगे और कहाँ से उसको वो ब्रॉन्ज टूल्स मिलेंगे कार्विंग के लिए, इसके लिए उसको डिपेंडेंट होना पड़ता था। द ब्रॉन्ज टूल्स मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल, कॉपर एंड टिन। और उसी तरह से जो ब्रॉन्ज जो टूल्स बनाते थे वो खुद नहीं जाते थे मेटल्स को लाने के लिए। ठीक है, उनको कोई ना कोई जैसे ट्रेडिंग के थ्रू उनको प्रोवाइडेड होता था, उनको मिलता था और फिर वो बनाते थे। बिसाइड्स ही नीड्स रेगुलर सप्लाई ऑफ चारकोल और फ्यूल, और साथ ही साथ उनको ये रेगुलर सप्लाई की भी ज़रूरत होती थी। द डिवीज़न, क्योंकि अगर उनको वो बनाना है, अगर टूल्स बनाने हैं तो उसके लिए उनको चारकोल, क्योंकि वो उससे आग जलाएंगे तो उसके लिए चारकोल फ्यूल के रूप में चाहिए होता था, और वो आता भी था तो ट्रेडिंग के थ्रू। द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। तो इसलिए जो अर्बन लाइफ जो डेवलप हुई वो सिर्फ फूड प्रोडक्शन के थ्रू नहीं, रूरल डेवलपमेंट के थ्रू नहीं, बल्कि ये जो लेबर का डिवीज़न था, ठीक है, लेबर डिवीज़न की वजह से भी ये अर्बन लाइफ जो थी वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती चली गई। फर्दर, देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड एक्सेट्रा come from many different places for the city manufacturers. Thus, organized trade and storage is needed. क्योंकि अब ये दूसरी सिटीज़ से, दूसरे शहरों से इन सारी चीज़ों को ट्रेड करके लाया जाता था, और इसलिए यह ज़रूरी था कि एक ऑर्गेनाइज ट्रेड सिस्टम जो है वो चले, और जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जा रही हैं उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड हो। There are deliveries of grain and other food items from the village to the city, and food supplies need to be stored and distributed. और जब ये दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से जो
ट्रेड करते थे, तो उसके लिए फिर ये फूड सप्लाईज़, क्योंकि मेसोपोटामिया का जो ये रीजन है यहाँ पे फूड क्रॉप्स अच्छे हो रहे हैं लेकिन मिनरल्स की कमी थी, तो ये मिनरल्स को बाहर से लाने के लिए फिर ये अपनी जो फूड सप्लाईज़ थी उनको उनके एक्सचेंज के थ्रू ये लाते थे, और इसके लिए ज़रूरी था कि जो फूड सप्लाईज़ हैं वो अच्छे से स्टोर्ड हो और डिस्ट्रीब्यूटेड हों. बिसाइड्स मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड. देयर मस्ट बी not only stones but also bronze tools and pots available for seal cutters. Obviously, in such a system, some people give commands that other obey. ठीक है, और ये जो ट्रेडिंग का जो ये सिस्टम था, जो ट्रेड सिस्टम था, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ लोग जो थे जो कि ऑर्डर करते थे और कुछ लोग जो थे जो सर्व करते थे, जो उस ऑर्डर को पूरा करने का काम करते थे. एंड अर्बन इकोनॉमीज़ ऑफन रिक्वायर्स द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स. और जब इस तरह के जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे रीजन के साथ अगर ट्रेड हो रहा है तो फिर ये ज़रूरी हो जाता था कि ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के वो रिटन हो और प्रॉपरली केप्ट हो, उनका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाए. नाउ वी विल सी movement of goods into cities. However rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were very few. मेसोपोटामिया का जो ये एरिया था वो फूड रिसोर्सेज में तो बहुत रिच था, लेकिन इसके जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ही कम थे. मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन फॉर टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स, एंड वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पोपलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ड्स. ठीक है, जो साउथ का जो ये पार्ट था वहाँ पर जो स्टोन्स के जो टूल्स बनते थे या जो सील्स बनते थे या जो ज्वेलरीज थी, उनके लिए जो रिसोर्सेज वो सारे जो थे वहाँ पर अच्छे नहीं पाए जाते थे, वहाँ पर नहीं पाए जाते थे. और जो डेट और पाम के जो वुड्स होते हैं उनकी लकड़ियाँ जो थी वो कार्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. कार्ड व्हील बनाने के लिए, बोट बनाने के लिए वो लकड़ियाँ जो थी वो बेकार थी, वो उससे अच्छे न तो कार्ड व्हील्स बन पाते थे और न ही बोट्स. एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स. और क्योंकि वहाँ मिनरल्स की कमी थी तो किसी भी तरह का कोई मेटल जो था वहाँ पर नहीं मिलता था. सो वी कैन, देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट. और वहाँ पर उनके पास टूल्स बनाने के लिए या वेसल्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए कोई मेटल भी नहीं मिलता था. इसलिए हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो अपना, उसके वहाँ जो टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन होता था या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, उनको वो उनके बदले में वो वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और वेरियस स्टोन्स जो हैं वो टर्की और ईरान से मंगाता होगा या गल्फ़ कंट्री से मंगाता होगा, जहाँ पर एग्रीकल्चर की संभावनाएं कम हैं. तो मेसोपोटामिया का एरिया जहाँ पर फूड प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, तो अपने फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू वो उन कंट्रीज़ से जहाँ पर कि इसकी फूड प्रोडक्शन के चांसेस कम हैं, वहाँ से वो मेटल वगैरह जो है वो ज़रूर इंपोर्ट करता रहा होगा. दीज लेटर रीजन्स हैड मिनरल रिसोर्सेज. क्योंकि वो सारे एरियाज़ जो थे वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, लेकिन एग्रीकल्चर का स्कोप जो था वो बहुत ज़्यादा कम था. रेगुलर एक्सचेंजेस पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. और इस तरह का जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोई हो तभी ये जो रेगुलर एक्सचेंजेस जो हैं वो किए जा सकते हैं. जैसे हमने देखा फैक्टर ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट था. साथ ही साथ जो क्राफ्ट ट्रेड एंड सर्विसेज थे वो भी इम्पॉर्टेंट थे अर्बनाइजेशन के लिए. बिसाइड्स क्राफ्ट ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है, एफिशिएंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. इफ़ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन or charcoal into cities on pack animals or bullock carts, the city economy will not be viable.
अगर इन सारी चीज़ों को, जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को अगर कार्ट पर या किसी एनिमल पर के पीठ पर लाद कर अगर ले जाया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये ठीक भी नहीं था। और इसलिए चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था वो था ओवर वाटर, थ्रू वाटर। इसलिए रिवर बोट्स और शिप्स पर ये जो ग्रेन्स के सैक्स हैं उनको लाद कर, और इस तरह से जो ट्रेड होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो थ्रू रिवर हुआ करता था। द कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स of ancient Mesopotamia were in fact routes of good transport between large and small settlements. And in the account on the city of Mari, later in the chapter, the importance of the Euphrates as the world route will become clear.